wonderful students, a very wonderful morning to you. Wonderful morning, a morning कैसे wonderful होगी? Morning ऐसे wonderful होगी when you and I meet together for a wonderful topic. This morning will automatically become wonderful. Now again I am here with the topic vocabulary with fun, and I suppose you are enjoying the topic. I hope you are enjoying the vocabulary with fun topic, because this is the most enjoying way to just memorize the difficult words with the trick, और उसके साथ साथ उसके synonyms भी और उसके antonyms भी. तो ये words I promise you will never forget in your whole life. That is my target, कि कुछ भी word याद हो तो वो कभी भी ना भूले. So on this note, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all on the online tutorial of Defense Services Academy, and I am here to update your vocabulary today. So let's begin vocabulary with fun. So students, let me begin today's lecture with a new word and with a very connective word which you can connect it easily. So today's first word in vocabulary segment is yell. Now before checking out the word, see the picture. क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर से बच्चा? This man is shouting at this kid. ये बंदा इस पे चिल्ला रहा है. दिख रहा है इसके मुंह से क्या निकल रहे हैं? Some words. तो जब आप किसी को चिल्लाते हैं, जब कोई भी किसी को चिल्लाता है, a normal word is there, shout. But shout के अलावा भी one word is there for yell or for shout. That is yell. So today's first word is yell. Yell मतलब चिल्लाना. Yell मतलब to shout. Yell means to scream. किसी से ऊंची आवाज में बात करना, किसी पर चिल्लाना. That we know it as a yell. So that is today's word yell. अब yell आपको पता है, shout आपको पता है. इसके और synonyms क्या होंगे? Howl. H-O-W-L. Howl is a word for shouting. Howling means चिल्लाना. Screaming मतलब चिल्लाना. Shouting मतलब चिल्लाना. Yelling मतलब चिल्लाना. See this. So this man is yelling at this kid. तो yell means to shout. चिल्लाना. Don't yell at me. मुझ पर मत चिल्लाओ. Don't shout at me. मुझ पर मत चिल्लाओ. तो never yell at your younger siblings. अपने छोटे भाई बहनों पर कभी भी मत चिल्लाओ. Okay? So don't yell at anyone. किसी पर भी मत चिल्लाओ. Okay? So let's check some more words for yell. Now what are some more words for yell? Shout, scream, roar. Roar again. See this. What this man is doing? वो इतनी तेज चिल्ला रहा है कि बेचारा छोटा सा बंदा उड़ा जा रहा है. उसकी चिल्लाने के कारण वो गिरा जा रहा है. See this. तो he is roaring. इतनी तेज आवाज निकाल रहा है, गरज रहा है. That means like a lion he is roaring. दहाड़ रहा है. That means इतनी तेज चिल्ला रहा है. तो yell, howl, roar, scream, shout, all these words means to talk loudly. All these words means to talk loudly. One more word, squall. Squall means just to shout. बहुत तेज चिल्लाने को हम बोलते हैं squall. See this. तो never yell at anyone. कभी भी किसी से जोर से बात मत करिए, ऊंची आवाज में बात करिए. And especially to your parents. Don't answer your parents in a high tone. Always remember this. Don't talk to your parents in a high tone. Never use high tone with your parents, because they are your parents, your elders. Clear? Done? अब अगर yell का मतलब जोर से बोलना है, चिल्लाना है, स्क्रीम करना है, शाउट करना है, तो yell का ऑपोजिट क्या होगा? धीरे धीरे बात करना. धीरे धीरे बात करना. यस, yell का ऑपोजिट है बहुत धीरे से बात करना. बहुत धीरे से बात करने के लिए क्या बोलेंगे हम? See this. एकदम कान में जाके बात करना, एकदम धीरे से बात करना. तो जब आप धीरे से बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विस्पर, विस्परिंग.
धीरे से किसी के कान में जाके कुछ बोलना, दैट इज विस्पर। तो येल मतलब चिल्लाना, विस्पर करना धीरे धीरे बोलना। मरमर, मरमर अपने ही मुंह में धीरे धीरे बोलना, दैट इज मर्मर। जब आपको कुछ बात किसी से करनी होती है बट आप उससे कर नहीं पाते तो व्हाट यू डू, यू मर्मर विथ योरसेल्फ, आप धीरे ही मुंह में बड़बड़ाने लगते हैं, दैट इज मर्मर। तो विस्पर करना, मर्मर करना, धीरे धीरे बात करना, सी दिस, इतनी धीरे धीरे बात करना कि पास वाले को सुनाई ना आए, तो दैट इज ऑपोजिट ऑफ येल। तो येल मीन्स टू शाउट, विस्पर मीन्स टू टॉक इन अ वेरी वेरी लो टोन, बहुत धीरे बात करने को विस्पर बोलते हैं हम। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज चैग्रीन। चैग्रीन, अब ये चैग्रीन क्या होता है, सी दिस, चैग्रीन when you feel embarrassed, when you feel uncomfortable, when you feel weird, when you feel unacceptable, जब आप बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जब आप कहीं शर्मिंदा हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं चैग्रीन। अब चैग्रीन को याद कैसे रखेंगे? चैग्रीन को याद रखेंगे, जितना भी एम्बैरेसमेंट है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी झाग को रिन से धो डालो। सी द एग्जाम्पल, अगर हमारी स्पेलिंग है चैग्रीन, अब ये वर्ड कहीं याद आएगा या वर्ड कहीं भी एग्जाम में आएगा तो हम इसको याद रखेंगे चैग रिन। अब ये रिन क्या होता है? रिन साबुन होता है। रिन की साबुन से हम झाग निकालेंगे और रिन की साबुन से झाग निकाल के अपने सारे दुखों को धो देंगे। तो चैग्रीन मीन्स एम्बैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट को हम चैग्रीन से धो देंगे। तो चैग्रीन याद रखेंगे एम्बैरेसमेंट, चैग्रीन याद रखेंगे फ्रस्ट्रेशन, चैग्रीन याद रखेंगे डिप्रेशन, चैग्रीन याद रखेंगे वियर्ड सिचुएशन। तो चैग्रीन को रिन की झाग से चैग्रीन को धो डालना है। तो आई जस्ट सपोज या आई जस्ट प्रॉमिस यू ऑल कि अब जब भी चैग्रीन आपको वर्ड कहीं दिखेगा ना तो रिन की झाग जरूर याद आएगी और रिन की झाग से हम सारी की सारी शर्मिंदगी को धो के साफ कर देंगे। ओके, तो चैग्रीन के सिनोनिम्स होते हैं बच्चा एम्बैरेसमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मीन्स इंसल्ट। When someone insult other person in front of many persons, that particular person feel insulted, that particular person feel embarrassment, that particular person feels a weird situation, उसको हम बोलते हैं चैग्रीन। तो चैग्रीन, झाग, रिन की झाग से चैग्रीन को धो देना है, मीन्स एम्बैरेसमेंट को हटा देना है। तो चैग्रीन मीन्स फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट, uncomfortable, humiliation, insult. Check some more words for chagrin. अब chagrin के लिए कुछ और words, that means feeling uncomfortable, और वो याद कैसे रखेंगे? See, ये chagrin, जब आप uncomfortable हो रहे हो, when you are not able to face other person, when you feel like crying, when you feel like collapsing, when you feel like just shattering, जब ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं है, जब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन है, अनकंफर्टेबल है, व्हेन अ पर्सन डोंट फील लाइक टॉकिंग टू अदर्स, दैट इज चैग्रीन। रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दैट इज चैग्रीन। ओके, नाउ चैग्रीन के एंटोनिम्स क्या होंगे? चैग्रीन के एंटोनिम्स, सी दिस, द हैप्पी फेसेस, द स्माइलीज। तो चैग्रीन मतलब दुखी होना, चैग्रीन मतलब शर्मिंदा होना, चैग्रीन मतलब डिप्रेशन में जाना, फ्रस्ट्रेशन होना, नॉट टू फेस एनीवन, नॉट टू टॉक विथ एनीवन, दैट इज चैग्रीन। तो चैग्रीन के ऑपोजिट हैं प्लीज। प्लीज मीन्स हैप्पी, हैप्पी मीन्स हैप्पी, जॉय मीन्स हैप्पी। तो हैप्पी हैप्पी लाइक द हैप्पी फेसेस। ट्राम्फ, ट्राम्फ मतलब विनर, ट्राम्फ मतलब जीत। So when you are happy, you feel like a winner. When you are happy, you feel you have won everyone's heart. When you are in a triumphing position, you feel you are on the top of the world. Gladness, gladness, happiness, pleasure means happiness. तो chagrin means embarrassment. Chagrin का opposite happy.
glad, pleasure, joyful. That is opposite of chagrin. Done? Now next word is aloof. Now aloof कौन होता है? अब देखो, हमने एक मूवी देखी है लंच बॉक्स, इरफान खान स्टारर मूवी लंच बॉक्स. लंच बॉक्स में दिस स्टार इरफान खान, he loves to be alone. अलूफ मतलब सबसे अलग. सी, अलूफ का मतलब ही होता है सबसे अलोन, अकेला. तो अलूफ पर्सन अलग रहना पसंद करता है. अब अलूफ को याद कैसे करेंगे? अलूफ, तो दैट मीन्स ऑल से ऑफ, दैट मीन्स सबसे हटके, सबसे डिस्कनेक्टेड, सबसे दूर. तो अलूफ का मतलब होता है अलग रहना, अलूफ का मतलब होता है अनकनेक्टेड रहना, अलूफ का मतलब होता है अलोन रहना, अलूफ का मतलब होता है लोनली रहना. ओके, सो अलूफ एंटी सोशल मीन्स द पर्सन इज नॉट सोशल टू एनीवन. द पर्सन डज नॉट वांट टू बी सोशल विथ एनीवन. द पर्सन डज नॉट वांट टू बी कनेक्टेड विथ एनीवन. उसको पार्टीज में नहीं जाना, उसको किसी से बात नहीं करनी, उसको किसी दोस्तों से नहीं मिलना, उसको किसी के साथ एंजॉय नहीं करना, उसको किसी से बात भी नहीं करना. दैट इज अलूफ. ऑफिस, ऑफ, अब ये देखो बच्चा, ये ऑफिस नहीं है, ये ऑफ इश है. ऑफ इश मतलब सबसे ऑफ, सब रिलेशन से ऑफ, सब कनेक्शन से ऑफ, सबसे दूर, वो अलूफ है. आइसोलेटेड. अब आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग आज की कंडीशन में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. आइसोलेशन वर्ड्स, आइसोलेटेड पर्सन. तो आइसोलेट, जब एनीवन इज हैविंग द इन्फेक्शन ऑफ कोविड, what the doctors are suggesting कि let him be isolated. उसको isolate कर दो, उसको सबसे दूर कर दो, उसको अकेला कर दो. उसके रूम में कोई नहीं जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, वो किसी से मिलेगा नहीं, किसी के टच में नहीं आएगा. दैट मीन्स आइसोलेटेड. तो आइसोलेटेड मीन्स व्हेन अ पर्सन इज नॉट इन टच विथ अदर्स, not in contact with others, when a person is not able to communicate with others, when a person is not able to be with others, that is isolated. तो isolated का मतलब अकेला, अलूफ का मतलब अकेला, एंटी सोशल का मतलब जो सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करता, जो लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता, जो अलग रहना पसंद करता है, दैट इज आइसोलेटेड, दैट इज अलूफ. ओके, अब अलूफ के लिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं. सी, अलूफ के लिए अब पहले ये वर्ड देखो, ये पिक्चर देखो. अब सी दीज पर्सन्स, these persons are standing in a group, talking in a group, discussing in a group, and see this person. क्या कर रहा है वो इतनी दूर? वो सबसे दूर है, वो सबसे अलग है, because he is aloof. क्योंकि वो अलूफ है, क्योंकि वो अलोन है, क्योंकि वो सबसे दूर है, क्योंकि वो अलग रहना पसंद करता है. तो अलूफ मतलब रिजर्व्ड, अलूफ मतलब डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर. सी, उसकी दूरी है सबसे, वो सबसे दूरी बनाए रखता है, वो किसी के भी करीब नहीं आता, ना फिजिकली, ना हार्टली, ना इमोशनली, ना मेंटली. ओके, डिटैच्ड. अब अटैच होना, किसी से बॉन्डिंग होना, किसी से कनेक्शन होना, किसी से जुड़ा हुआ होना, मेंटली, हार्टली एंड इमोशनली. तो दैट इज अटैच. डिटैच मतलब सबसे कट ऑफ, कोई रिश्ता नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, दैट इज अलूफ, दैट इज डिटैच. इनडिफरेंट. नाउ दिस इज डी. इनडिफरेंट, इनडिफरेंट उसको फर्क ही नहीं पड़ता, नो इमोशंस एट ऑल. वो इनडिफरेंट है, वो इनसेंसिटिव है, उसके दिल में किसी के लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं हैं. अनसोशेबल, वो सोशेबल नहीं है, वो पार्टीज में नहीं जाता, वो लोगों से नहीं मिलता, वो लोगों से बात नहीं करता, वो लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता. कोल्ड. ना हाउ कोल्ड? वो ठंडा है. कोल्ड इन द सेंस कि ही इज हैविंग कोल्ड इमोशंस. हम बोलते हैं अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल. वार्म वेलकम
मतलब heartily welcome, मतलब with the feelings welcome. They have given us a cold welcome, मतलब कोई feeling नहीं थी यार, कोई emotions नहीं थे. तो cold मतलब without feeling, cold मतलब without emotions, cold मतलब without any of the emotions. Okay? Reserved. Again, reserved मतलब वो एक category में reserve है, वो यहाँ रिजर्व है, वो इनसे मैच ही नहीं कर रहा, इनसे बात ही नहीं कर रहा, इनसे अटैच ही नहीं हो रहा, इनसे कनेक्टेड ही नहीं हो रहा, इनसे एक बॉन्डिंग ही डेवलप नहीं कर रहा. ओके, तो अलूफ के बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं. अलूफ सबसे दूरी बनाए रखने वाले पर्सन को बोलते हैं अलूफ. अब अलूफ का मीनिंग अगर दूरी बनाए रखने वाले को बोलते हैं तो अलूफ का एंटोनिम क्या होगा? लेट्स चेक आउट. तो अलूफ का एंटोनिम, अब एंटोनिम देखने से पहले सी दिस पिक्चर. नाउ हाउ ऑल दीज पर्सन्स आर एंजॉयिंग एंड कनेक्टिंग टू ईच अदर. कैसे सब एक दूसरे से मिलके बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं. तो अलूफ जो दूर रहता है और अलूफ का ऑपोजिट जो फ्रेंडली है, अलूफ का ऑपोजिट जो एमिकेबल है. एमिकेबल वर्ड आई हैव यूज्ड अर्लियर इवन. एमिकेबल, a person who is easily becoming friend with others, a person who is easily connected to, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं. सोशल, जो सोसाइटी में रहना पसंद करता है, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, जिसको लोगों से बात करना पसंद है. ग्रेगैरियस, now ग्रेगैरियस फ्रेंडली, ग्रेगैरियस एमिकेबल, ग्रेगैरियस सोशल, ग्रेगैरियस जो सबसे बहुत जल्दी जुड़ जाता है मेंटली, इमोशनली एंड हार्टली. वार्म, अब अलूफ का मीनिंग था कोल्ड, तो अलूफ का ऑपोजिट होगा वार्म. अब ये वार्म टी या वार्म मिल्क नहीं है, गरम दूध या गरम चाय नहीं. वार्म फीलिंग्स, वार्म इमोशंस, हार्टली इमोशंस. कॉर्डियल, कॉर्डियल अगेन हैप्पी. तो अलूफ का ऑपोजिट हैप्पी, अलूफ का ऑपोजिट वार्म, अलूफ का ऑपोजिट ग्रेगैरियस, अलूफ का ऑपोजिट प्लेजर, अलूफ का ऑपोजिट एमिकेबल, अलूफ का ऑपोजिट फ्रेंडली. तो अलूफ वर्ड याद रहेगा. और अलूफ के साथ साथ याद रखना दैट पर्सन हु इज नॉट एबल टू कनेक्ट विथ अदर्स. अलूफ का मतलब वन हु लव्स टू बी अलोन, one who lives alone and not with the society, that person is aloof. और aloof का opposite friendly, happy, pleasure, enjoyable, sociable, that is the antonym of aloof. So students, on this happy note, I end this topic here. Again, I will be back with some new words and with some new tricks for teaching you vocabulary with fun. So I hope all the words which I have taught you today, you have understood that, you have noted down in your register, and you have just understood the meanings and the opposite of all the words which I have taught you today. What's your work now? I have done my works with sincerity. Now it's your time to do your work, and what is your effort will be, what your effort will be today, just post your feedback on my video so that I can have your feedback, and as you all know, your feedback is the booster for me. One more thing, just make many sentences, as many as you can. Just make many sentences on the words you have learned today. Just make short and sweet sentences by using all the words you have learned today, and send it to my WhatsApp or send as a feedback on my video. So just on this happy note, have a nice day. Take care. Bye.